how are you? I hope you all are good, and today in this video we are going to discuss the important aspects of cultural studies. Okay, so sit with your copy, pen and paper, whatever you are having, just gather it, and one water bottle you can also keep, because really this will be a comprehensive and detailed lecture of cultural studies. See now, first we have to see that from where the cultural studies, the term it originated. So if we talk about the origins of the term, it developed in the Britain as a reaction against high or elite culture. See, I want to tell one thing, that Raymond Williams also says that culture is ordinary. Culture is ordinary, that it is not extraordinary. You are not talking about the aristocratic section of people, or you are not talking about elite classes. It talks about the working class. So it is really ordinary. Okay, and इट इज़ अ रिएक्शन. जैसे हमारा रोमांटिसिज्म मूवमेंट था, वो एक रिएक्शन था अगेंस्ट न्यू क्लासिकल एज, और वी कैन से ऑगस्टन एज. सो दिस कल्चरल स्टडीज़ वाज आल्सो अ रिएक्शन अगेंस्ट एलीट कल्चर और हाई कल्चर. कल्चर क्या होता है, अगर हम बात करें महात्मा गांधी के भी वर्ड्स में उन्होंने कहा इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग. बट कल्चर is not just limited to the text. It is all about the artifacts which are using. For example, the pen you are handling, the bottle you are having, or the watch you are wearing. It can be anything. Okay, so it shows the culture from where you are belonging. Suppose if I have an Apple watch, then you can think that I am coming from an elite culture. Okay, so that's all the notions which we have made for ourselves, and these are the things from which we get to know the culture of any person. Okay, particularly. So it reached its peak. If you have been asked in NET examination that who are the three people, I am again repeating, who are the three people who are the main proponents of elite culture, and F.R. Lewis, I hope you all know, he has given also the term of great tradition. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ग्रेट ट्रेडिशन में उन्होंने कौन से राइटर्स को इंक्लूड किया है. सी वी विल वर्क टुगेदर. सम वर्क आई विल डू फॉर यू एंड सम वर्क यू हैव टू डू फॉर योरसेल्फ. देन इट विल बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. देखेंगे अब तो यहाँ पे F.R. Lewis, Q.D. Lewis, and there are people who are the proponents of elite culture. So they are giving the ट्रेडिशन ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन, नॉट नैरो डेफिनेशन ऑफ कल्चर. तो क्या होता है कि कैपिटलिज्म में देखो लिखा भी हुआ है, रिजेक्शन ऑफ पॉपुलर कल्चर एज कंटेमिनेटेड बाय कैपिटलिज्म, बिकॉज कैपिटलिज्म हैज़ शोन इट्स ओन कल्चर. तो वहाँ पे मार्क्सिज्म का भी एक व्यू आता है. जो कल्चरल स्टडीज़ है, इट्स रूट्स हैव बीन देयर इन मार्क्सिज्म, बिकॉज मार्क्स टॉक्स अबाउट द सुपर स्ट्रक्चर, बेस स्ट्रक्चर. और पूछा भी गया था सुपर स्ट्रक्चर बेस स्ट्रक्चर क्या होता है. तो यहाँ पर मैंने इसकी एक इमेज ली है, आप इसको देख सकते हैं. इफ आई जूम इट, सुपर स्ट्रक्चर से बेस स्ट्रक्चर होते हैं जो आपका इकोनॉमिक बेस है ना. ये आपका इकोनॉमिक प्रोलेटरेट जो वर्किंग क्लास है. और अगर हम बात करें सुपर स्ट्रक्चर की, तो जो कल्चर है, आप कौन सा, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल, देन यू कैन एज्यूम दैट ओ माइट बी आई कम फ्रॉम अ पुअर फैमिली. बट इफ आई कम फ्रॉम अ रियली rich family, I am just studying in foreign universities, for example Oxford or Cambridge or any other thing, it shows my culture. So in NET examination ये क्वेश्चन आया था सुपर स्ट्रक्चर के बारे में. तो देखेंगे इसमें क्या क्या है. Art, it includes family, culture, religion, law, media, politics, science, education. ये सारा आपका सुपर स्ट्रक्चर का बात करता है, जिसका प्रोडक्शन से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है. लेकिन अगर बेस की बात करें, यहाँ पे इकोनॉमिक बेस है, तो यहाँ पे वर्किंग क्लास की बात की जाती है, बुर्जुआ की नहीं की जाती है, प्रोलेटेरिएट की बात करते हैं. ओके, so cultural capital, cultural industry, these terms are also really important. We will discuss in detail. Now see, so सीधा सा एक पॉइंट तो हमको समझ आएगा. इट इज़ अगेंस्ट, यू कैन राइट ऑल्सो, हाई ब्रो ट्रेडिशन, दैट इज़ वेरी रेयर. तो ये लो ब्रो की बात करता है. ऐसा मानना था इनका,
जो F.R. Lewis थे और वी कैन से Q.D. Lewis, दे एज्यूम दैट जो एलीट पीपल है वही ही प्रिजर्व कर सकते हैं कल्चर को, दे आर ओनली द कस्टोडियंस ऑफ कल्चर, बट इट इज़ नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है ट्रू। बल्कि रेमंड विलियम्स ने क्या कहा है कि कल्चर तो एसेंस में है, ऑर्गेनिक है। आप जाके देखेंगे वर्किंग क्लास पीपल, उनका कल्चर तो ओरिजिनल कल्चर इज़ दैट। कल्चर एक्चुअली क्या है, हम इसको एक लेजिटिमेट फॉर्म दे देते हैं और हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज़। हम लुईस अल्थुसर की बात करेंगे, ग्रेट फिलोसोफर हैं कल्चरल स्टडीज़ में। वो बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की। जैसे हमारा जितना भी, आई एम ऑल्सो राइटिंग द टर्म इंटरप्रिलेशन, whatever we believe, we think it as a part of culture। जो भी हमारे myths हैं, जो culture है, जो हमको सिखाया जाता है, हम उसको true समझने लगते हैं। but this is also again created। for example, आपको ऐसा शो किया जाता है कि आपके पास चॉइस है, स्टिल देन यू डू नॉट हैव एनी चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे प्राइवेट स्कूल में, इफ़ यू आर अर्निंग गुड इनकम, तो आप प्राइवेट में भेजना चाहेंगे बिकॉज कल्चर इज़ दैट। सो द हाईब्रो कल्चर अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम्स, अकॉर्डिंग टू E.P. थॉम्सन, जिन्होंने कल्चर वर्किंग क्लास पे भी एक बुक लिखा, तो ये सारे कहते हैं कि वर्किंग क्लास का कल्चर है। कल्चर अगर एक टर्म समझना चाहे तो एक एवर लास्टिंग है, डायनेमिक है, चेंज होती रहती है। जो आज कल्चर है, टुमारो इट माइट नॉट बी द केस दैट टुमारो इट विल बी द कल्चर, इट विल चेंज। सो कल्चर इज़ अ वेरी नेगोशिएटेड state, it is not culture is what is accepted as a legitimate one, but culture is again putting a question on that legitimate thing। जो आज legitimate माना जाता है, जो आज सही माना जाता है, क्या वो कल सही होएगा कल्चर के अकॉर्डिंग, है ना। चाहे हम अपने ड्रेसिंग स्टाइल में देख लें, तो आज जो कल्चर है वो क्या काफ़ी साल पहले भी था वैसा कल्चर। सो इट इज़ वेरी रेयर। सो जो जितने भी हमारे कल्चरल फिलोसोफर्स हैं, दे आर मार्क्सिस्ट, लेफ्ट विंग से हम इनको कहते हैं, दे आर फ्रॉम लेफ्ट विंग, न्यू लेफ्ट स्कॉलर। So these questions and concepts should be very much crystal clear from the net perspective। आगे बात करें, देखेंगे from Richard Hoggart and Raymond Williams we initiate a discussion of cultural studies। So ये दो लोगों का आपको नाम नहीं भूलना, first is Richard Hoggart and second is Raymond Williams। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़ क्या है? सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़। तो ये CCCS करके हम इसको कहते हैं, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ री इवैल्यूएशन ऑफ द क्लास क्वेश्चन। ये पहली बार एक ऐसा यूनिवर्सिटी बना था ऑफिशियल फॉर्म में, सेंटर बना था यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में। ओके, सो इट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम आपका 1964 ईयर है, ईयर भी याद रखेंगे। यहाँ पे आपका सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़ की स्थापना हुई, इट गॉट एस्टैब्लिश्ड इन ब्रिटेन। तो पहली बार ये क्वेश्चन कर रहा था एलीट क्लास कल्चर को। इट इज़ शोइंग दैट वर्किंग क्लास का भी खुद का कल्चर है। न्यू अप्रोचेस टू कल्चर पायोनियर्ड बाय होगार्ट, रिचर्ड होगार्ट एंड रेमंड विलियम्स। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। होगार्ट की अगर आपकी कंपोजिशंस की बात करें तो फर्स्ट आपका है, यहाँ पे आप देखेंगे, यूजेस ऑफ लिटरेसी। व्हाट इज द कंपोजिशन बाय देम? इट इज यूजेस ऑफ लिटरेसी 1957। एंड रेमंड विलियम्स का वर्क है कल्चर एंड एजुकेशन इन 1958। So you know these years are really important। हाँ जी, ये ईयर आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार दे आस्क यू नो टू आइडेंटिफाई इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो फॉर दैट परस्पेक्टिव इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। विलियम्स कल्चर एंड सोसाइटी 1958 इट इज़ कमिंग। सो 1957 में क्या आया? रिचर्ड होगर्ट का यूजेस ऑफ लिटरेसी, एंड इन द नेक्स्ट ईयर रेमंड विलियम्स इज पब्लिशिंग कल्चर एंड सोसाइटी।
आप ऐसा सोच सकते हैं इसको याद करने के लिए, विलियम्स बात करते हैं कल्चर और सोसाइटी को इंटरमिंगल कैसे हम देख सकते हैं समाज के साथ, और रिचर्ड होगट talks about the uses of literacy, that people who are having the education, they are considered intelligent, but still then how they have been used by these elite classes, how the elite class culture is controlling the literacy. Okay, so this is the main perspective or point of view we can say. आगे बढ़ेंगे. होगाट फाउंड, सो फर्स्ट डायरेक्टर अगर आपसे पूछे तो होगाट है, और अगर ऑड वन आउट में पूछे तो सेकंड स्टुअर्ट हॉल बने थे. देखेंगे, होगाट फाउंडेड कल्चर कंटेम्प्रेरी सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम इन 1964. पहला पॉइंट, ही बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर दैट दिस पर्सन होगाट अपॉइंटेड स्टुअर्ट हॉल. ये किसको अपॉइंट करते हैं? स्टुअर्ट हॉल को अपॉइंट करते हैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर बाय 1971, एंड हॉल बिकेम द डायरेक्टर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, दिस सेंटर. लेकिन लेट 1990 में हम देखेंगे इसका एलिमिनेशन होने लग गया. इट गॉट डिसमेंटल्ड ड्यू टू द डीस्ट्रक्चरिंग. तो बहुत सारी चीज़ें अवे होने लगी और ये बहुत फिर टूटने लग गया. It was no more. रिचर्ड होगट की बात करें, it hailed from a working class background. He tried to privilege the organic working class culture over mass culture. See, एक example लेंगे. For example, there are roads, there are vehicles, and there are pedestrians. Of course, in vehicles there are cars. So, मास कल्चर की बात करें तो बहुत सारे लोग पेडिस्ट्रियंस हैं, ठीक है, पर वर्किंग क्लास की अगर हम बात करें, मास कल्चर, चलो वी कैन टेक व्हीकल्स. ओके, टेक इट लाइक दिस. सो मास कल्चर इज़ ऑल अबाउट व्हीकल्स. ओके, अगर हम बात करें रोड पे हमारे कितने व्हीकल्स चलते हैं, लेकिन वर्किंग क्लास जो पेडिस्ट्रियंस हैं जो बहुत ज़्यादा नंबर में हैं, व्हीकल्स में अगर हम स्पेशली कार की बात करें, कार इज़ लेस इन नंबर but pedestrians are more in number. Still then we have larger roads for these cars, but there is very short space for these pedestrians. What this thing is showing, pedestrians walking, the people who walk. So it shows कि आप ऑर्गेनिक वर्किंग क्लास को प्रिविलेज जो नहीं किया जा रहा था, तो यहाँ पे रिचर्ड होगाट वॉज प्रिविलेजिंग दैट ऑर्गेनिक वर्किंग क्लास कल्चर ओवर मास कल्चर जो चलता आ रहा है. मास कल्चर आप सेल फोन भी ले सकते हैं आजकल, स्मार्टफोन, बट द थिंग इज many people who are not leveraging the use of that cell phone. So culture स्टडीज़ जब आप पढ़ते हैं, आप हर एक चीज़ को बहुत ही क्रिटिकल आई से यू ट्राई टू लुक, एंड योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. अगेन आई एम सेइंग, सो he discussed the changes that happened to the working class culture with the advent of capitalism. कैपिटलिज्म के आने के बाद, after the advent of capitalism, पूंजीवाद सरकार के आने के बाद, how many changes we can see in the government, in the culture, that is the main thing Raymond Williams is talking about. तो इनका वर्क है, अच्छा ठीक है, सॉरी रिचर्ड होगाट, इट इज़ अ स्लिप ऑफ द टंग. रिचर्ड होगाट का एक कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन भी एक वर्क है, ध्यान रखेंगे. इट इज़ कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन. व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस, यू विल सी मेनी क्वेश्चंस आर पुट अप फ्रॉम हेयर. और यूजेस ऑफ लिटरेसी, यूजेस ऑफ लिटरेसी का सबटाइटल क्या है? एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग क्लास लाइफ कमिंग इन 1957. ठीक है. और रेमंड विलियम्स क्या लिख रहे हैं? कल्चर एंड सोसाइटी, नेक्स्ट ईयर 1958. सो यहीं पे याद कर लीजिए. See, it is an attempt to understand the changes in culture in Britain caused by massification. मैंने आपको बता दिया कि कैसे मास मीडिया, या आप देखते हैं कोई आपकी एड है ना, एडवर्टाइजमेंट, इफ़ यू आर वॉचिंग एंड यू सीइंग इट इज़ रियली अट्रैक्टिव एंड यू जस्ट बाय दैट थिंग, तो वो कंज्यूमर कल्चर, एंड कंज्यूमर कल्चर कैन बी वेरी मच detrimental because it always instigates to buy those things. it always आपको provoke करता है कि चलो आप वो वाली चीज़ खरीद लो. So it has two parts. It recalls the lost working class culture in Northern England and it attacks the impact of post-war consumer culture. कितनी तेज़ी से जो मास मीडिया है वो कंज्यूमिंग कल्चर को, आप देखेंगे, आप अमेजोन पे कुछ टाइप करेंगे और उसके बाद आपको वैसे ही प्रोडक्ट्स वैसे ही शो करने लग जाएंगे. तो दैट इज़ आपका जो कल्चर है, कंज्यूमर कल्चर, जो पोस्ट वॉर के बाद है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अटैक किया.
Then E.P. Thompson, if we talk about, he is an important person, a new left scholar. He is writing this famous book, The Making of the English Working Class, in 1963. It is a massive book on the development of the working class during the 18th 19th century. तो working class की ही mainly बात की गई है culture में. वो डॉक्यूमेंट करता है क्या जो वर्किंग क्लास का कल्चर है, उनके सॉन्ग्स, उनके बैलेट्स क्या होता है, लॉन्ग सॉन्ग व्हेन यू डिपिक्ट लव स्टोरी और हीरोइक समथिंग, सो दैट इज फोक आर्ट रिकॉर्ड्स. सो दीज दे आर पोर्ट्रेइंग, डिपिक्ट करती हैं सारी चीज़ें. इट डॉक्यूमेंट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हिस्टोरियंस लुक्ड एट इन दोज टाइम्स. तो E.P. Thompson work is important. This one, The Making of the English Working Class, coming in 1963. आगे बढ़ेंगे. रेमंड विलियम्स की बात करें, कल्चर एंड सोसाइटी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है 1958. ये सारे वर्किंग क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं. न्यू लेफ्ट थ्योरिस्ट दे आर. They asserted that culture is a whole way of life, the idea of lived culture. Culture is ordinary, they want to I can say democratize culture. वो culture को democratize करना चाहते थे. वो सिर्फ एक सीमित नहीं रखना चाहते थे elite notion of culture की तरह कि ठीक है मैथ्यू आर्नल्ड, एफ.आर. लीविस इन लोगों ने कह दिया. No, they are looking at the culture from the working class perspective. Paul Gilroy we will see a person, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में. ये भी यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि आप वर्किंग क्लास, ये क्वेश्चन कर रहे हैं डोमिनेंट कल्चर को, जो न्यू लेफ्ट स्कॉलर्स का डोमिनेंट डिस्कोर्स है. जैसे डोमिनेंट डिस्कोर्स क्या है कि women should be speak very in a very low tone, they should oblige what their parents always say, they as compared to boys. So that is dominant discourse. But if they go against it, then it is counter culture, और we say emergent culture, oppositional culture, और एक residue culture आता है. तो देखेंगे अभी बात हो रही है रेमंड विलियम्स लॉन्ग रेवोल्यूशन, अगला ही स्लाइड है. तो अभी देखेंगे यहाँ पे हम बात कर रहे थे रेमंड विलियम्स की, दैट ही स्टडीज कल्चरल प्रोडक्शन टू अंडरस्टैंड हाउ फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, द प्रेस, एडवर्टाइजिंग, एजुकेशन वर इंस्ट्रूमेंटल. हर एक चीज़ कैपिटलिज्म कैसे अफेक्ट कर रहा है. सो मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास जो E.P. थॉम्सन ने लिखा, इट वॉज अ first document in 1963 which is telling about the evolution of the working class. पहली बार बुर्जुआ क्लास और प्रोलेटेरिएट के बीच E.P. थॉम्सन ने बताया था वर्किंग ऑफ द, ये वाला जो हमने पहला देखा इनका 1963 में, और यहाँ पे कल्चर को सोसाइटी के साथ रिलेट करके रेमंड विलियम्स बता रहे हैं. तो देखेंगे लॉन्ग रेवोल्यूशन में वो क्या देते हैं. इन 1961 व्हाट ही सेज, there will be a revolution when coming generations will change culture and society by asserting popular and democratic views and public ownership of communication technologies. ठीक है, तो कल्चर हमेशा चेंज होता रहेगा. डोमिनेंट कल्चर I told you which is clearly visible, then residual culture, बचा कुचा culture, the remaining part of that. Three types of cultures this person Raymond Williams is showing: dominant, emergent and we can say residual culture. और इन्होंने टर्म भी दी थी एक cultural materialism की. He coined this term in this work only. No, it was in his this work, Marxism and Literature, 1977. ठीक है, तो ये याद रखना. ईयर्स आर इम्पॉर्टेंट. सो सी नाउ, एमर्जेंट और ऑपोजिशनल कल्चर जो काउंटर कल्चर है, दैट चैलेंजेस डोमिनेंट कल्चर. ठीक है, जैसे एक हमारा कंट्री एंड द सिटी का हम देखेंगे, इनका एक वर्क है जो एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी बन गई है कि कंट्री दे आर द सिंबल ऑफ इनोसेंस and the city, what is city is an example of corruption or we can say debasement. So there is an oppositional relation between the two, but we always say in city we have more privileges of higher education, or so it has become a dominant discourse. So ये सारे works हैं. So based on our position we can say, we can identify these things.
मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर में ही हैज़ इंट्रोड्यूस दिस टर्म कल्चरल मटेरियलिज्म. इट इज़ अ मेथड. अच्छा ईयर्स एक बार नोट कर लेते हैं. 1962 कम्युनिकेशन, इम्पॉर्टेंट वर्क. इट शोज़ दैट हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, बिकॉज यू नो द वे वी कम्युनिकेट इट ऑल्सो शोज़ द ओपिनियंस अबाउट द रिस्पेक्टेड पीपल, कि हम उनके जो वॉइस कर रहे हैं उनके ओपिनियन को. तो ये मार्क्सिज्म में रूटेड है कल्चर, ये मैं बता चुकी हूँ. आगे देखेंगे. सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स तो इन्फ्लुएंस करते ही हैं, और ब्रिटिश काउंटर पार्ट है एक तरह का न्यू हिस्टोरिसिज्म का. सो फ्रॉम पीटर बैरी बुक you can read this concept of new historicism and then culture. This is important. स्टुअर्ट हॉल की बात करते हैं नेक्स्ट. See, he is a Jamaican born मार्क्सिस्ट सोशोलॉजिस्ट एंड कल्चरल थ्योरिस्ट. सारे ही आपको मार्क्सिस्ट ही मिलेंगे, और मार्क्सिज्म का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है. ही सेज दैट स्टुअर्ट हॉल आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ मैसेज हाउ कल्चर इज इन्फ्लुएंसिंग. जैसे अभी कोरोना आया तो एक प्रोडक्शन ऑफ मैसेज हुआ ना, हर जगह कॉल्स पे इट गॉट रेगुलेटेड दैट वियर दिस मास्क. So after that it is utilized, leveraged और reproduction हुआ, फिर fashionable marks बनने लगे. And there is the case also when people are only purchasing those clothes with which masks are free. So that is the culture they are bringing. So Stuart Hall भी यही बात करते हैं. और यहाँ पे जो रेमंड विलियम्स हैं वो 3 तरह के कल्चर के रीडिंग्स बताते हैं. डोमिनेंट कल्चर, रेजिड्यूल कल्चर, एमर्जेंट और अपोजिशनल कल्चर, कि किस तरह से बेस्ड ऑन आवर पोजीशन वी आर एबल टू डीकोड इट. डीकोड क्या होता है? अच्छा, एनकोड होता है कि मैं अपने वर्ड्स को किस तरह से प्रेजेंट करती हूँ, हाउ आई प्रेजेंट माई मैसेज एंड पुट इन द वर्ड्स. डीकोड व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. सो डीकोडिंग वी कैन से अंडरस्टैंडिंग. तो स्टुअर्ट हॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. फाउंडर थे. अच्छा, ये न्यू लेफ्ट रिव्यू के इट इज़ इम्पॉर्टेंट. मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ही हैज़ गिवन, वी विल सी. ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये एक्रोनिम है PCUR. ओके, ये आप याद रख सकते हैं. 4 स्टेजेस प्रोडक्शन होएगा मैसेज का, देन इट गॉट सर्कुलेटेड ईदर इन विजुअल और रिटन फॉर्म समथिंग. एक तरह से इसको वी कैन नेम इट एनकोडिंग. And then it is usage, consumption of that message, meaningful. Then reproduction, effect क्या होएगा उसका, जिससे एक्शन लेंगे लोग. तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग. he gave this, that is a part of communication theory as well as a reception theory. जब आप वर्बल होता है, मान लो मैं लिख के बोल कर कुछ भी आपको करो, नॉन वर्बल एक्शंस. I'm not speaking something, but my eyes, my expressions, they are showing. So decoding, you can say, that is the negotiation of the receiver with the text based on his or her knowledge, cultural background, experiences. Decoding को हम ले सकते हैं preferred reading, negotiated reading या oppositional. See, रेमंड विलियम्स का मत भूलना. डोमिनेंट कल्चर, उससे जो काउंटर करे दैट इज विच चैलेंजेस डोमिनेंट डिस्कोर्सेज. अपोजिशनल कल्चर और वी कैन से एमर्जेंट कल्चर, काउंटर पार्ट और रेजिड्यूअल इज द remaining one. But here Stuart Hall says preferred reading. For example, there is a holiday. You say, oh wow, exam, suppose exam has got rescheduled. So you wow, अच्छा ही हुआ, it got late. The negotiated reading, oh my god, it got late, but still then I will manage. But oppositional, I'm totally against it. How can they do? We have done so much hard work and they are delaying the date. So that is the perfect decoding, how I understand a particular concept according to my perspective. Okay, तो हमारा वो आ जाएगा decoding. तो इन लोगों ने ये दिया स्टुअर्ट हॉल का सर्किट ऑफ कल्चर. इन रिसेंट थ्योरी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन रिप्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो कल्चर इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी मार्कर. I told you, if I'm wearing good clothes, I'm wearing fashionable a phone or something like that, so it shows our culture. So Stuart Hall tells this, PCUR.
4 stages: production, then consumption, then usage, and then reproduction. You can remember this. And preferred reading, negotiated reading, and oppositional reading. तो ये कुछ इनके important थे. स्टुअर्ट हॉल का ध्यान रखेंगे. आगे देखिए, इनका एक ये बुक है रिप्रेजेंटेशन, इम्पॉर्टेंट वर्क है, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन एंड सिग्निफाइंग प्रैक्टिसेस, कमिंग इन 1997, एडिटेड बाय हॉल. ओके, कल्चर को इन्होंने एक सेंट्रल रोल बताया मैनिफेस्टेशन में. सी ही सेज टिल द टाइम यू डोंट मैनिफेस्ट द कल्चर, इट डजंट गेट विजिबिलिटी. तो आपको क्या आएगा, विजिबिलिटी नहीं मिलेगा. तो देर आर मल्टीपल शिफ्टिंग मीनिंग्स टू इमेजेस. The absent part of the image is equally important as the present part. However, power structures attempt to fix meaning. See, ये मार्क्सिज्म से थोड़ा सा बिल्कुल लगी रहा इफेक्ट है कि पावर रिलेशंस को डिस्कवर करना चाहते हैं. जैसे कार्ल मार्क्स ने सुपर स्ट्रक्चर और बेस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया कि वी नीड टू एक्सपोज दो स्टीरियोटाइप्स. कंट्री एंड सिटी में भी रेमंड विलियम्स बताते हैं ना कि कंट्री कैसे आपका इट हैज़ बिकम द सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड सिटी हैज़ बिकम द सिंबल ऑफ करप्शन. सो दैट इज देयर नीड टू एक्सपोज द स्टीरियोटाइप्स. देन लुइस अल्थुसर अगेन, जिन्होंने इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट दिया, जो कहते हैं कल्चर इट इज़ कॉन्शियसली हमको वो बिलीव करवाया जाता है उन सारी चीज़ों में. देर आर मेनी ISA, रिमेंबर, आइडियोलॉजिकली स्टेट अपार्टर्स, दैट इज स्कूल, मॉल, हॉस्पिटल्स. तो आपका ये क्या है, दे आर समवट आपको शो करते हैं कि आप सर्टेन स्ट्राटा से बिलोंग करते हैं. इफ़ यू आर गोइंग टू अ सर्टेन मॉल, इफ़ यू आर टेकिंग clothes or purchasing clothes from a local market, it shows the strata from where you are coming. If you are studying in a high-fi school, if you are going to a high-fi hospital, it shows the strata. So Louis Althusser is saying that how ideological state apparatus, they are also as repressive. Repressive कैसे, prisons हैं, laws हैं, वो आपकी identity को एक तरह से I can say they fix it. Okay. कैसे reproduce हो रहा है culture, perpetuate हो रहा है. Exploitative relations, culture is sometimes can be very much repressive. एंटोनियो ग्राम्स्की, हेजेमनी का, हेजेमनी क्या होता है, पावर का कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ पावर, is an important philosopher. Domination of one over another with consent, the key word is here consent. So Roland Barthes text says, he says not a definite object, play of meanings. आगे हम देखेंगे इन्फ्लुएंसेस. मिशेल फुको का पावर एंड नॉलेज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलवेज रिमेंबर, ही सेज पीपल हु आर इन पावर, they are the people who make this culture, they are the inventors of knowledge. Okay, then it is the term panoptism coming. तो हेगेमनी का हमने बड़ा पावरफुल कंट्रोल है. इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ड्यूबॉइस ने कॉन्सेप्ट दिया डबल कॉन्शियसनेस का. पूरा नाम आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनका. डबल कॉन्शियसनेस मीन्स हाउ वी थिंक. फॉर एग्जाम्पल, एक तरह से हम कह सकते हैं, हम अपने पर्सपेक्टिव से जब सोचते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, सो दैट इज़ वी डू नॉट थिंक फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव बट वी थिंक फ्रॉम द अदर पीपल पर्सपेक्टिव. फॉर एग्जांपल, फीमेल्स थिंक फ्रॉम द मेल पर्सपेक्टिव. और ये ब्लैक हार्लेम रेनेसां में यूज़ हुआ था. जैसे वी कैन से दैट फॉर एग्जांपल द वाइट पीपल और ब्लैक पीपल, हाउ दे आर थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वाइट पीपल. तो डिस्कोर्स, पैनोप्टिज्म का आप देखेंगे अब, स्टेट विल क्रिएट एन ओवरऑल तरह से आपको कंट्रोल करेगा. वॉचिंग आई, इट कैन ऑल्सो ट्रेस द लोकेशन. डिस्कोर्स मतलब द आइडियोलॉजी यू आर फॉलोइंग. इट मीन्स हाउ कल्चर इज अफेक्टिंग. Power and knowledge, I told you. Biopolitics is how government is even controlling the biological aspects. From example, George Orwell, we have seen 1984. There the government says totalitarian that
उनमें वो ऐसा कहते थे कि गवर्नमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करते थे उनके इवन फिजिकल एस्पेक्ट्स, दैट दे कैन नॉट मेक लव और समथिंग लाइक दैट. सो 1894 जॉर्ज ऑरवेल का नॉवल है, डिस्टोपियन नॉवल. यू कैन डू द रीडिंग ऑफ डिस्टोपियन नॉवल्स जिसमें आपका आइडियल स्टेट नहीं दिखाते. और यूटोपियन मीन्स आइडियल, जैसे थॉमस टिमोर. Pierre Bourdieu has given this concept of cultural capital. Biopolitics का आप example vaccines पे you can take, how state was deciding during corona that which vaccines we have to take, so is it valid or not. So it is showing that how government is interfering in the domain of our healthcare aspects. Cultural capital is the network that I have created. Or the single child policy, है ना, वन चाइल्ड पॉलिसी, ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ बायोपॉलिटिक्स. मिशेल फूको इससे जुड़े हैं. मेन क्या है? मिशेल फूको, पेनोपटिसिज्म, बायोपॉलिटिक्स. अब कल्चरल कैपिटल है नेटवर्क दैट आई हैव क्रिएटेड, पीपल हुम आई नो हु हैव इकोनॉमिक रिलेशंस. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अगर मैं इफ़ आई कम फ्रॉम एलीट कल्चर, इफ आई एम गोइंग इनटू अ पार्टी विच हैज़ वेरी हाई फाई पीपल, आई एम हैविंग द रिलेशंस विद दैट. सो व्हाट इज़ दैट? द कल्चरल कैपिटल जो मेरा क्रिएट हुआ है. ओके. Then graphic guide of cultural studies, Yodin Sardar, Clifford Gills, Stuart Hall का circuit of culture you will remember. Jane Baldy-Wright hyper reality का वो एक concept देते हैं, that means I need not to be physically there. For example, I might not have gone to Antarctica, but when I Google, the moment when I Google this Antarctica, जब मैं Google करती हूँ ये words, तो अच्छा ये क्या है? वैसे साइंस है, और साइंस का कॉम्बिनेशन होता है सिग्निफाइड और सिग्निफायर का. और सिग्निफाइड और सिग्निफायर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? फर्डिनेंड डे सशोर, स्ट्रक्चरलिस्ट. अच्छा, सिग्निफाइड सिग्निफाइड क्या होता है? सिग्निफाइड देखो, सिग्निफायर होते हैं ये साइंस, जो कुछ साइन आपको इंडिकेट कर रहे, ए एन टी. बट सिग्निफाइड मतलब क्या कहना चाहते हैं, दैट इज़ द आइलैंड, देयर ब्यूटी, सिग्निफाइड. ओके, नाउ देखेंगे. जेन बॉल्डी-राइट कहते हैं हाइपर रियलिटी. इफ आई डोंट गो टू एंटार्क्टिका, स्टिल देन आई कैन एक्सप्लोर, आई कैन हैव एन एक्सेस टू द वीडियो, टू द ब्यूटी, टू द सीन ऑफ एंटार्क्टिका. दैट इज सिमुलेशन. यूट्यूब से या गूगल से हाइपर रियल वर्ल्ड में जाते हैं व्हेन यू नीड नॉट टू बी फिजिकली देयर. तो एडवर्ड सोजा का एक कॉन्सेप्ट है थर्ड स्पेस का. यू विल फाइंड दिस व्हाट इज थर्ड स्पेस एंड यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. चलिए आगे बढ़ेंगे. When you have luxury of time, you can read this, Ziauddin Sardar, the graphic guide of cultural studies. नेशनल स्टडीज़ में इमेजिन कम्युनिटीज़ के किससे जुड़े हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. बेनेडिक्ट एंडरसन is the person who is associated with imagined communities. Then it is Spivak. Spivak essentialism, strategic essentialism इनका एक important जुड़ा हुआ है. Subaltern, Orientalism है ना, एडवर्ड सेड ने भी दिया था. और फ्रेंड्स फेनिन का भी वर्क है. आई विल पिन द कमेंट रेस्ट ऑफ द अर्थ करके. आई कांट रिमेंबर एट दिस टाइम. चलो अब बात करते हैं पोस्ट ह्यूमनिज्म. पोस्ट ह्यूमनिज्म आफ्टर ह्यूमनिज्म जो कॉन्सेप्ट आ रहा है. वेट आफ्टर ह्यूमनिज्म. सो मैनफ्रेड ए क्लेंस ने कॉइन की थी टर्म साइबोर्ग. साइबोर्ग मतलब साइबर ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपका एक तरह का हाउ ह्यूमंस आर नॉट द सेंटर नाउ सेंटर्स आर मशीन्स हैव बिकम सेंटर. इनका इंपॉर्टेंट वर्क एक वर्क है कैथरीन हेल्स ने लिखा. यू विल रिमेंबर दिस वर्क, हाउ वी बिकेम पोस्ट ह्यूमन. ठीक है, डोना हार्वे, कैरी वॉल्फे, दीज आर एसोसिएटेड विद दिस. सो यू विल रिमेंबर दिस. Okay, so these are some popular cultural studies. Okay, subaltern studies, Partha Chatterjee is related with it, or how people say that who are fat, they are not healthy. So this is the stereotypes we have made. Particular disability studies, how people are different from others, we consider it very much abnormal type.
So I will end my lecture today. I think many of the things we have done in this lecture. Thanks for joining and thank you so much for all your contribution and watching first of all, है ना, time जो आपने दिया इतना कीमती समय. So thanks.